ਬਹੁਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਹ ਰੰਗ ਰਸ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਰੰਤਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਪੜ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਜੋ ਬੀਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਹਾਪੜ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਰੁਦਰਪੁਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਰਾਤੀ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਥੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੁਤਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਠ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾਂ? ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਹੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਕੰਨ ਪਾਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਜੇ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਵਜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲੋਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਤ ਅਤੇ ਭੂਤ ਉੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤਦਾ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੋਥੀ, ਅਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬਾਂ।
तो आप सारिਆਂ ने ध्यान नाल पढ़िया होएगा, सुनिया होएगा, दर्शन किए होणगे पोथी साहब के अंदर। जदों शुरू की भूमिका आती है तो पोथी विच ना आंदा है भगत जन्म राज जी का। ये सारा उन्हां दा परोपकार है। असी छोटे छोटे बच्चे होंदे सां, पाकिस्तान दे ते सुनते सां क्यों नहीं लिखते सन, लेकिन दिल्ली जदों आए 1960 की गल कर रहे हैं, हुण ला लो कितने साल हो गए। दिल्ली आए अभी 62 साल हो गए। तो इतनी पुरानी गल कर रहे हो ना, बचपन तो उन्होंने जदों दर्शन किए तो उन्होंने वास्कट अंदर एक कापी पतली जड़ी होंदी सी, बिना जिलत तो पतली 24 पेजा वाली या छोटी आंदी सी, तो एक पेंसिल भगत जी के जेब विच होनी। तो उन्होंने एको ही काम सी कि वो कहते सन सतगुरां दियां साखियां। पाकिस्तान तो आए सन ना, तो सारिया साखियां उन्होंने अपने कलमबंद उन्होंने कीतियां। जिस तरह कोई सुणांदा सी ना, नाल उहदा नां भी किथे किथे लिखते सन। जिन्हां साखियां ना आया, किस दी मारवत सुनिया, साखी नहीं सी जिसने, लेकिन ये लिखा कि इस आके इस शरीर ने सुनाई। साखियां बहुत सारियां मिलियां। वो माई सुधी का परिवार जिहड़ा अज भी साडे विच है, माई सुधी का मतलब कि कह सकना मैं कि पड़दादियां तो भी अगे परिवार चलता पाया और साडे विच है छाबड़ा परिवार। प्रीतम नूं भी तुसी जानते हो, प्रीतम लाल छाबड़ा, तुसी मोती नगर काका भी कह देने, प्रीतम लाल जी भी कह देने। पिछे बजुर्ग मैं वेख रहा सी सामने हरगोरी जी के भी दर्शन होंदे हैं। इन्हां दी दादी, वो वेखो कितने बजुर्ग ने, हुण हिसाब लाओ कि उन्हां दे दादी उन्होंने वो इतिहास लिख लिख के पक्का किया तो दिता। तो देखो कितना परोपकार होया। अज पोथियां सुनने आ, ये सब कुछ जड़ा साढ़े कोल आया है, मेहनत साहिब महाराज होना दी सी। साखियां विचकार होर भी बहुत सारियां आईयां जिन्हां दा जिक्र होया। साहब महाराज होना कोल भी सन, आप बीतियां भी सन सच्चे पातशाह दियां। वो बहुत सारियां साखियां आईयां। फिर उस तो बाद कहते ना कि साखियां ते आ जाना, लेकिन कलम बंद करने वाला कोई लिखारी जड़ा कहते ना मोती ते बिखरे हुए माला बनाने वाला कोई चाहिए। एक एक अखर परो के उन्होंने, वेखो कितनी सोहनी भाषा, कितनी सरल भाषा, एक एक अखर समझ आता है पोथी साहब का। रोज़ असी दर्शन कर रहे हैं तो दिन कितने और रह गए साढ़े को। देखो असी कितने वडभागी हाँ, एक गल नूं समझना। जिहड़े नित दियां हाज़रियां भर रहे ने, पोथी साहब दे दर्शन कर रहे ने, जिथे भी बैठे ने, देसां विच ने विदेसां विच ने, इंज साक्षात अखा बंद करो तो महसूस होता है कि सतगुरु भगवान दास साहब जी आप दर्शन दे रहे सामने बैठे हुए। जो साखी चलती है ना तो ये महसूस नहीं होता। इस तरह होता है कि असी भी उत्थे बह के वो जिहड़ा लीला वरती रही है, असी भी उत्थे सामने वेख रहे हैं। इस तरह बनिया साखियाँ, असी भी साक्षात दर्शन कर रहे हैं। 31 तरीक साखियां तो बाद भोग पैना है, लेकिन भोग तो उन्होंने वास्ते जिन्होंने मुड़ के ध्यान नहीं करना। असी अगर इन्हां साखियां नूं नित अपने अंदर वसाया तो समझो सानू नित ही मालकां दे दर्शन हो रहे हैं। तो जिन्होंने इन्हां साखियां नूं अपने अंदर नहीं वसाया
उन्हीं अपना टाइम खराब कर रहे। मैं तो यही कहूँगा। तो गुरु कोलों हुण तक जेड़े नहीं पहुँचे, यतन करिए। माता जी का ये कहना होंदा सी कि बच्चों चलती गड्डी भी चढ़ जाओगे ना तो मंजिल ते पहुँच जाओगे। अगर किसी कारण नहीं पहुँचे, ये जेड़े रहिंदे दिन ने, भावें एक दिन की हाज़री लवाओ जरूर, एक दिन की लगे भावें लगे जरूर। बहुत अमृत वेले 5 बजे तो 6 बजे तक दिल्ली है, तो दुखभंजनी साहब के नेड़े जेड़े हैं इत्थे 5:30 बजे शुरू होती है, अद्धा घंटा होर बाद ही 5:30 तो 6:30। तो इत्थे पहुँच के तो सतगुरां दे असी प्रतख दर्शन करिए। करमदेव की साखी सुनी तुसी? ये साखियां जड़ियां सानू की सेध देंदियां? सतगुरां ने सबनों सहज सुभाਅ, जिस तरह सहज सुभाਅ कहता असी तो यही समझते हैं कि उन्होंने कहा तेरी कित्थे नहीं जाती, 100 का नोट तेरा कित्थे नहीं जाता। ये परिवार भी बड़े इन्हां दे चुक परिवार, ताराचंद जी चुग जिन्हां दा नां तुसीं सुनिया। साखियां वेखो कितनियां साखियां उन्हां दियां आंदियां। भगतां नूं अगर याद करने ना, क्योंकि दाने का काम करते सन, चारा बेचते सन अपने समय ते। असीं अपने दर्शन किए सारिਆਂ ने। फ्रूट का काम सी, चोपले की दुकान सी उन्हां दी। उन्हां दे भी बच्चे परिवार अज साडे विच बैठे ने। हापड़ सारे जानदे हो जुगल जी नूं, उन्हां दे ही बच्चे ने। उस टाइम दाना जदों भेजते सन तो टांगा लैके आना, किसी ने बैलगड्डी लैके आनी, जो भी उस टाइम के साधन यही सन, मोटर कारां नहीं सन। तो चारा लैंदियां लैंदियां कई बार कहंदे ने विच सवारी भी बैठी होंदी सी, तो सवारी नाल भी गलबात हो जाती सी। गल करदियां करदियां हुण बलद गुमिया तो उसका काम करवाया, घोड़ा गुमिया तो घोड़ा मिलाया। फिर करोल बाग की ना सेवाराम सूरी जी का मेल भी उन्होंने कराया। तो सतगुरां ने बख्शिशां कितनियां कीतियां वेखो। बहाना बनया, एक सुनियारे का बच्चा नौकरी लग गई, कहता जी पहुँच गया आपके चरणा ताराचंद चुग जी की मार्फत ही। लेकिन वो बख्शिश वाली वो कहने लगे परिवार कहता नौकरी नहीं करनी, अच्छे बड़े काम हैं, तो सुनियारे की दुकान खोल देती। तो सतगुरां कोलों बख्शिश मंगी, सच्चे पातशाह जी कुछ बरकत दो। वो बरकत दी उन्होंने। वो बरकत की सी? दुकान कन्नन उत्थे भी जिथे उन्होंने सुनियारे का काम किया उत्थे भी खूब चली वड्डी दुकान। फिर कन्नन कंट्रोल लग गया सोने ते। सोने ते जो कंट्रोल लग्या तो फिर उन्होंने काम छोड़ दिता। फिर उन्होंने दिल्ली करोल बाग सेवाराम ना तो मतलब कि बहुत वड्डी दुकान, वड्डा शोरूम, उथे करोल बाग जगह का ना नहीं पता, लेकिन जिस पासे गुरुद्वारा भी पैंदा है तो नाल स्कूल भी है शायद गुरु हरकृष्ण पब्लिक, उसके सामने चीप सिल्क स्टोर वाली सड़क ते जाके अगे हरध्यान सिंह रोड, उस रोड उत्ते उन्हां दी वड्डी दुकान। तो उन्होंने फिर जदों ठाकर साहब का परिवार मेरठ तो लाला अविनाशी राम जी उन्होंने कोल पुजे तो उन्होंने पहचान लेता
उन्होंने पहचान लेता कि आप जी दे दर्शन तो मैं किथे पाकिस्तान कैमलपुर कीते ने, पुरानी गल सामने याद आ गई। तो फट अपना गला खोलिया, कहते ने वेखो सतगुरां दी वो बख्शिश वाला रुपया मेरे को अज भी हैगा। तो उन्हां दी बदौलत ये जड़ियां बरकतां चल रही हैं सारियां उन्हां दी किरपा नाल। ते बख्शिशां जड़ियां ना सतगुरां ने कोई निर्वैर की भावना सी, कोई किसी वाल नहीं सी। उन्होंने भावना वेखी, जड़ा आया किस भावना नाल आया। हुण बलद लैण आया जिहदा गुमिया सी, वो तो कोई मुसलमान सी, लेकिन सतगुरां ने देखो बहाना की बना दिता। सतगुरु जी कहते ने कि ये लै पुड़ी लै, ये पुड़ी लै लै, तेनू राती खा ली, फिर तेरा पेट साफ हो जाएगा। हुण उत्थे संगत जिहड़ी बैठी है वो इस गल नूं हैरानगी कर रही है। इस गल ते विचार करना कि संगत इस गल ते हैरानगी कर रही कि बई ये कहंदा मेरा बैल गुआच गया है, सतगुरु जी कहते ने पुड़ी ले लै। ये गल समझ नहीं आई है कि राज की हैगा। हुण इन्हां गल्लां ते असीं वेखीए ना कि सतगुरु ने समा किस तरह बनाना है, तो किस तरह उहदी गुमी चीज़ मिलनी है, तो उहदे तन दे रोग भी दूर कीते, तो जिहड़ी विपता आई वो भी दूर कीती। तो फिर बैल वो जदों राती उन्हें पुड़ी खाधी तो सवेरे तक उन्हें पुड़ी ने असर दिखाया, हाजत हुई उन्होंने। वो बाहर जंगल पानी वास्ते जदों गया तो सामने उन्होंने बैल वेखदा नज़र आ गया, क्योंकि टाइम हो गया सी ना, मिलना सी ना समा। तो नाल आके जो धन्यवाद किया तो यह भी गल कही कि मेरा कई दिनों तो परेशान था, मेरे पेट में बहुत पीड़ रहिंदी सी। तो उस तो बाद कहते जो सवेरे मैं राजी होया तो मेरे जिहड़ी अंदर तकलीफ सी, मेरे तकलीफ भी नहीं रही। तो ये चीज़ां अगर असी छोटियां छोटियां चीज़ां ने इन्हां ते विचार करना है, कितनी सरल भाषा च साखियां सारियां गुरु कोलों, क्योंकि हुण ते साडे कोल रिकॉर्डिंग भी है। अगर किसी कारण पोथी साहब खोलने का दर्शन करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मैं अपनी गल कर सकना, मैनू पढ़ना बड़ा औखा लगता है, मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन सुनना मैनू बड़ा चंगा लगता है। पढ़ना तो सुनना दोनों फर्क है। पढ़ के सिर्फ आदमी अपने विचार सामने रख सकता है, और जितनी बुद्धि होएगी उस तो ज़्यादा नहीं रख सकता। लेकिन सुन के सामने वाले दे भाव भी तुहानू पता चल गए, तो उस नाल आप जी ने अपने नू भी मिलाया, तो पता चल गया कि मैं इस तो कितना थले हाँ तो कितना उत्ते हाँ, मेरी भावना कित्थे हैगी कि मैं उहदे बराबर भी उतरना या नहीं उतरना। तो मेरी अगली बार मैं साखी सुना तो मेरी भावना की होनी चाहिए है। साखी जो सुनो ना, सुनने का फायदा यही है, जदों असीं संगत च बह के सुनने हैं ना, बोलना बड़ा आसान काम जे, सुनना सब तो औखा काम जे। क्योंकि कहते ना कई बार आदमी बैठा होंदा है, कहता इनू झेलना बड़ा औखा है, तो उड़ जाओ उड़ जाओ। बाणी च भी यही हिसाब है। अगर किसी को कोई रागी सिंह पसंद नहीं आता, जबकि बाणी तो वही है, सतगुरां दी है, साडा सीस झुकिया हुआ, लेकिन फिर भी विच निकल जाते हैं, कहते कीर्तन कर रहा नूं, तो हुण कीर्तन नूं कीर्तन ही है, नूं कीर्तन करना नहीं आता, या सानू वो बंदा चंगा नहीं लगता। असी इस चीज़ नूं भुल जाने कि वो उस्तत किदी कर रहे, असी कीर्तन छोड़ देने कि बंदे नूं वेख के,
लेकिन इस चीज़ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਤਤ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਸਤਤ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੇ ਸੁਣੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੇਗਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸਾਖੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਹੋਰ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਬ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਬਦਲ ਨੇ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਆਓ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜੀਏ। ਹਾਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਵੀਰਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ, ਸੋਮ ਪਹੁੰਚਣ, ਮੰਗਲ ਪਹੁੰਚਣ, ਬਹੁਤ 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਮਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ कि कोई कुछ नहीं कहेगा ये नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया। इतनी गुरु महाराज की संगत होएगी, कोई किसी वाल ध्यान नहीं करता। लेकिन अगर जिस काम वास्ते असी जा रहे हैं, भावें लोकल हैं भावें बाहरों हाँ, पुरब ते जाइए, जिस काम वास्ते जा रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵਣ। सेवा भी करिए, सिमरन भी करिए तो बरकतां सारियां गुरु महाराज कोलों जदों अरदास होवे ना तो उस अरदास विचों फिर यही सरबत दा जदों भलिया मंगिया जावे तो सरबत विच असी सारे यतन करिए, असी सारे उत्थे होईए। जे हाजरियां लगन सब दियां झोलियां मेरा नाल सतगुरु जी भरन। यही बख्शिश लैण आए हाँ। इतना उपराला ये जड़ा चल रहा है इसी करके चल रहा है कि साढ़े विच बदलाव आए, साढ़े जीवन विच बदलाव आए, साड़ी सोच विच बदलाव आए, साढ़े व्यवहार विच बदलाव आए, साड़ा व्यवहार भी बदले। गुरु कोलों ये बख्शिशां मंगी है। तो ये प्रोग्राम आने वाले 31 तरीक का प्रोग्राम पोथी साहब की भी समाप्ति होएगी। उपरंत कीर्तन दरबार जिस तरह चलता है और आधा घंटा वध चलेगा, क्योंकि निरंतर प्रोग्राम चल रहे हैं। ये नहीं है कि उस दिन 2 घंटे और चले।
अगर नहीं चलेगा तो कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि हाजरियां तो सब दियां निरंतर चल रही हैं। 31 तो बाद जिंज असी कहने ना सर्दियां भोग पैंदा है, तो कहने जी चलो 8 तरीक शुकराना है, तो पहली तरीक शुकराना समझ के सारे पहुँच जाना, कहना शुकराना करने आए हैं, ते नाल मालक दा पुरब भी मनाण आए हैं, हाजरी बन जाएगी साड़ी। ऐसी बख्शिश गुरु कोलों मंगीए, तो पहली तरीक भी दर्शन करिए जेड़े आ सकते हैं। गुरु कृपा करे सब ते। इतनियाँ एक बेनतियाँ परवान, समय बहुत अगे हो गया, लेकिन आप सब ने सहयोग किया, आप सब का धन्यवाद। गुरु कोलों यही हुण अरदास विच यही बख्शिशां मंगांगे कि सच्चे पातशाह सब दियां हाजरियां जेड़े जेड़े भी आप दे चरनां नाल इस वक्त जिधर भी जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि इत्थे ने बाहर भी अगर देश विदेश जेड़े आप दे चरनां नाल जुड़े, सब दियां हाजरियां आपने लाणियां, तो सबनों अपने चरनां नाल जोड़ना, ये बख्शिशां मंगनियां। इतना कहंदे ही इत्थे संकोच है। धन धन सतगुरु भगवान दास साहिब, धन धन सतगुरु सेवा राम साहिब, धन धन साहिब संत माता जी। आप दिनों कोट कोट, कोई भी रचना खाली न रहे, सब गुरु उपदेश आनंद साहिब मिल के पढ़िए। सतगुरु सेवा राम जी।